Yes, it is started. Okay. Hello everyone. So up to this point, what we have done, we have classified the signals. We have then classify the systems. Solids into three parts based upon the energy band diagram. So metals, okay, which particularly we call them the conductors. Okay. Second class of the solids that we classified, it was your semiconductors. Okay. So mainly your electronics class would be oriented around this semiconductors. Okay. Silicon, germanium, like gallium arsenide, gallium nitride. Okay, so these are some of the materials that we use in the electronics. Okay, mainly we will be concentrating on the silicon and germanium. So last is the insulators. So insulator is having its own applications. Okay, so we have done the classification. This classification was done based upon the energy band diagram. If you understand. Okay. So I will discuss the conduction. Okay, so let me. अगर किसी को if you are having any doubt from the last class, you can ask. Okay, otherwise we are going to start the topic today. So, yeah, anyone having doubt from the last class? No, sir. Okay, so this is only the basics of it. Okay, so energy band diagram. Okay, so already I told you about the silicons. Okay, so I denoted by the silicon, and it was having the 4 electrons in its valence shell, right? Okay, in the outermost shell, it was having the 4 electrons, like 2s2 and 2p4. This is your valence shell. Okay. So this is your 2s2 and 2p2. So energy in the energy band diagram, I told you about that energy band diagram. All the electrons they distributed. Okay. The every energy level was distributed into 2 parts. One was your valence band. Okay. So this is we call this as a valence band, and this is the conduction. Okay. So this y-axis is your energy. And this generally we do not mention, but this is the distance. Okay. This is the distance, and this will be the region where no electrons exist. So this is called the energy gap, or the forbidden energy. Okay. So electrons are forbidden to occupy any energy level here. So this is your energy. So how do the conduction takes place? First, you need to understand that why this silicon, how this because there is a how many type of bondings are there? Can you tell me? Can anyone tell me about how many types of bonding are there? Anyone? You have heard about this covalent bonding, right? So just tell me. Any other bonding is there? Yes. Anyone? आप लोगों ने डिस्कस किया होगा ना what type of bonds are there? Ionic bonds are there, covalent bonds are there. Another class is there also. Metallic bonds are there, right? Metallic bonds are there. Okay. So this is generally for the reserve for the metals. Okay. And ionic bonding generally takes place when there is salt. Okay. So whenever there is a given ratio, okay, so kindly mute yourself. Yeah, Pradeep sir,
Are you there? Okay. So mainly what happens in the sodium and the chlorine, if you understand, by getting the giving the just one electron, okay, and this chlorine accept one electron, its orbital shell is complete, right? और ये क्या देता है? It gives you its one electron to chlorine to complete the outermost shell. और outermost shell जो valence shell होती है, it requires 8 electrons, okay? So it completes it, then this bonds forms, right? Okay. So this ratio is around what? 1:7. Okay. What one? One is the outermost valence electron of sodium. The chlorine outermost electrons are 7. Okay. So either the sodium can give 1 electron or it can accept the 7 electrons to form the bond. Okay. So this ratio is just generally we call this as a non-uniform ratio. Okay. Non-uniform ratio. While in the silicon, okay, so the silicon and the semiconductors, they form the covalent bonding, okay, like silicon, germanium, they form the covalent bonding. So what is there? Here the sharing is uniform, okay, sharing is uniform. You would see that sharing is mainly uniform. How it is uniform? You see, its structure is, its covalent bond structure is like this. It is having 4 electrons in its outermost shell, so I am making it 4 electrons, okay. और ये क्या करता है? एडजेसेंट एटम के साथ शेयर करता है, ठीक है. So दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे. So this, okay, so this is the second atom. So what it would do? It would share with this second silicon atom, right? Okay, again एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा silicon, right? So this covalent bond, it's okay, it is represented here with the lines, but actually it's kind of a force. It kind of a force, okay. So अगर तुम लोग देखो तो exact structure ऐसा होता है तुम्हारा covalent bond का. How? See, what I have done, I have taken the 4 electrons of this, okay. इनके भी अलग outermost shell में 4 होंगे. अब तुम लोग क्या देख रहे हो inside it? Inside it you are seeing this atom, okay. This atom, in the outermost shell it got the 4 electron in the valence shell, okay. So it got 1 electron from the 4 adjacent atoms, okay, 4 adjacent atoms. So the ratio is 4:4. This ratio is uniform, okay. So most of the covalent bond forms when the giving and the taking ratio is uniform. Always remember this, okay. And when the giving and the taking ratio of the electrons is, it's non-uniform. It's like in the NaCl it was 1:7. उसे क्या चाहिए था? उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, राइट, ओके. या क्या कर सकता है वो? 1 इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना होता है? 7 होता है, राइट. क्लोरीन या तो एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 7 के 7 उसको सोडियम को दे दे, राइट. Okay, so that ratio, if the sharing is uniform, it's formed the covalent. Always remember. So we will be discussing this in detail today. So now already you know that in the energy band, the semiconductors are having some energy gap that is equal to almost, okay, it is almost equal to 1 electron volt. Okay. And can anyone tell me what is 1 electron volt? क्या होता है ये? Anyone? What is 1 electron volt? तुम लोगों ने, you will be hearing this often. Anyone? Can anyone tell me? Just unmute yourself. This is a general discussion is going on. Okay, don't worry if you are not able to do. Sir, हाँ बोलो. so 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so this you are saying this is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19. Okay, so what do you mean by this 1 electron volt? Why we refer this often? So let me tell you. So it is nothing but the energy or the work done by the electrons. Okay, energy, energy, so the work done by the electrons when electron
when it is passing through a potential difference of 1 volt. Okay, 1 volt. You already understand Q into V. So this would be equal to what? This is charge 1.6 into 10 raised to power minus 19. So this volt is 1 volt. Okay, so this would be around would be 1 electron volt. Okay, so we take this as a reference and we refer this energy. So all the energy gaps that you will be seeing around, that will be in the electron volts only. Okay, so if I'm talking about 1 electron volt, this is the typical value of 1 electron volt for the semiconductors. अब देखो, अब now you know that okay, in the semiconductor the covalent bond forms, but how the conduction is taking place with respect to Venn diagram and with respect to this electronic gas model. Okay, so this is we are going to discuss. You see, so I'm making a more general structure that you would find in your book. Okay, तो तुमने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख लिया उसकी कि वैलेंस बॉन्ड कैसे, वैलेंस शेयर एडजेसेंट सेल में कैसे शेयर करते हैं आपस में. Now you will see that this is the more general structure, symmetric representation of a the total line is nothing but these are the covalent bonds. Okay, so this is your general structure you would see. Okay, आगे कंबाइन कर सकते हो. अब इसमें क्या है? Okay, each silicon atom is sharing the one electron, right? Just a minute. So this electrodes are electrons. Okay, so you can count the number of the electrons in the outermost shell. These are the 8. Okay, so this shell is complete. Okay, because it requires the 8 electrons to complete a valence shell. So now and about this energy band diagram discuss करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, detail with respect to valence band. So this is your valence band. Okay, this is your conduction band. So this is energy, this is just the distance. Okay, so what really happens is that, okay, so just write this statement I am writing. It's very general statement for all this. Okay, क्योंकि ये तुम्हारे में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है. All semiconductors, okay, and particularly I will in this intrinsic as well as the extrinsic. Okay, so intrinsic अभी discuss नहीं किया है, as well as extrinsic, and some of the compound semiconductors also, okay, are insulator at 0 degree Kelvin. Okay, तो ये स्टेटमेंट तुम लोग को हमेशा ध्यान रखना है. ये कैसे आता है? Just see this. You see this outermost electrons. Okay, so every atom is having the outermost electron. These are your valence shell. Okay, so these are this we call them the loosely bound electrons, right? Loosely bound electrons, and it's this energy that required to knock out these electrons. It is very less, right? जैसे जैसे n बढ़ेगा ये en क्या होता जाएगा? It will decrease. Okay, so you require lesser and lesser energy to knock out the outermost electron, right? Okay, so अब यहाँ पे क्या होता है? This, if at the 0 degree Kelvin, okay, at the 0 degree Kelvin, every electron is bounded to its atom. Every electron is bounded to its atom. Okay, bounded to its atom. Second point is that
for any current, if we want to means require any current, so what we need? We need some charge, right? We need some charge, or indirectly, we need some electrons to move around. Okay, where that is a free motion, where that is a bounded motion. Okay, so at the 0 degree Kelvin, every electron is bounded to its atom, or we can say that its parent nuclei. Okay, so it's not free. So the number of the, we can say, number of free electrons are almost equal to 0. Number of free electrons are almost equal to 0. So there will be no conduction. Okay, so no conduction will happen, because conduction के लिए क्या होता है? अगर conduction करानी है किसी को तो क्या होगा? You need some current, और current के लिए you need some charge, charge के लिए you need some free electrons. Always remember this. Okay, so here if you are increasing the temperature, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? This 0 degree Kelvin, this is equal to what? -2, I think. कितना होता है ये? 227 इतना होता है? इतना होता है कि नहीं होता है? All of you understand this? 0 degree Kelvin कितना होता है? -273. अब अगर तुम लोग क्या करते हो, इसको इंक्रीज करते हो, ओके, 300 डिग्री केल्विन पे लेके आते, सो दिस वुड बी योर मेन टेम्परेचर. 327 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर, राइट? दिस इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर. और इसके अलावा आगे तुम लोग जाओगे 700 डिग्री और, ओके, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे भी तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि as the temperature increases, all intrinsic will become extrinsic semiconductors will become intrinsic. Okay, so we will, for the time being, we will deal with the only 0 degree Kelvin in the room temperature. Okay, so what really happens when you are increasing the temperature? Okay, when you are increasing the temperature, indirectly you are increasing the kinetic energy. Okay, you are giving some energy to it. So what would happen? This, some of the electrons, those are loosely bounded. Okay, so they will leave their original position. Okay, so अब होगा क्या? Your electrons, okay, so electrons is here. अब ये क्या होगा? जैसे ही इसको थोड़ा सा एनर्जी मिला, okay, एनर्जी मिला, it will leave this valence shell, right? It will move here. Let us consider it will move here. Okay, और ये कैसे हो रहा है? You are increasing the temperature. Okay, you are increasing the temperature. You can say that some covalent bonds are broken. Okay, so this electron would move here. So what will be there? उसके उस तरफ क्या बच जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया है, right? Okay, if electron has moved, so what would happen at its original site? क्या होगा यहाँ पे? Can anyone tell me? What will be this thing? Sir, there will be a vacant space. Okay, so this valence space, we call this as a hole. Okay, we call this as a hole. Always understand this. जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे मूव करेगा. ओके, तो ये मूव कर सकता है इन द विद इन दिस क्रिस्टल स्पेस आल्सो. ओके, अनदर मोशन इज दैट, अब क्या करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन? क्या होगा? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है? इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, इस पोजीशन को. इट विल ब्रेक अप, इट विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन. ओके, अब यहाँ पे भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है. ओके, ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है विद इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड. दीज आर कॉल्ड होल. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. The vacancy created by the breaking up of covalent bond is called the hole. Okay, free electron से कभी भी hole नहीं बनता है. जो covalent bond जब break up होता है, okay, जो उससे vacancy create होती है, उसको हम लोग hole बोलते हैं. ठीक है? Okay, holes बोलते हैं. So electrons, this I am calling as H. Okay, तो अब क्या करेगा? अब यहाँ पे भी एक मान लो कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है. Okay, so this will occupy this. Okay, so in this way you got a motion of electrons, right? You got some motion of electron. अब हर एक इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है? मूव कर रहा है. ओके, दूसरी साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है. सो दिस मोशन, ओके, whenever there is a change of motion, ओके, देखो अभी मैंने कोई भी बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी लगाया नहीं है. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ सर? ओनली आई एम अप्लाइंग द टेम्परेचर टू इट. ओके, तो टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या हो रहा है? मेरा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो रहे हैं और मेरे पास क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहा है.
ओके, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मेरे पास क्या आ रहा है, जनरेशन हो रहा है, राइट, जनरेशन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इज इट सफिशिएंट टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक करंट? अब इसमें क्या होता है, तुम्हारा नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज होता है 0, सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, I have not applied any electric field to it, okay, so this current would be equal to 0, okay, would be equal to 0, but if I am applying, अब मान लो कि देखो, if I am putting this solid, okay, putting this solid, or particularly the semiconductor, okay, and I am applying the electric field होगा, ठीक है, okay, so these are your electrons, these are free electrons, and you have got the holes also inside it, okay, so electric field lines are already from positive to negative, you understand this, okay, and the like charges repel each other and the opposite charges attract each other. So what would happen if you are applying the electric field, so this electrons would be attracted towards this positive side, right, positive terminal of the battery, you can say, okay, so there will be some net motion of electrons towards one direction, okay, so there will be some current, okay, so that is how the current flow inside the intrinsic semiconductor. This is called the intrinsic semiconductor because the intrinsic semiconductors are your pure semiconductors, okay, they do not have any kind of impurity. अब ये क्यों एक्सट्रिंसिक का यूज करते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन हुआ, this its amount is very less, okay, its amount is very less, so the current is also, it's very less, okay, it's very less. अगर तुम लोग करोगे कि 0 डिग्री केल्विन से लेके तुम्हारा 300 डिग्री केल्विन है, तुम you will find out that this current is around 1 milliampere, while if you are increasing its temperature to 400 degree, this current is around 10 milliampere, okay, so this is I am talking about for the intrinsic semiconductor. So this, because of this density, the charges are the charges created by this temperature are very few in numbers, okay, तो इसका अमाउंट क्या होता है, फ्यू होता है। अब एक्सट्रिंसिक में तुम लोग देखोगे कि एक्सट्रिंसिक में वही जो 10 मिली एम्पियर करंट है दैट यू कैन प्रोड्यूस एट 300 डिग्री केल्विन, ओके, सो यूजफुल क्या है हमारे लिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ओके, so that we are going to discuss in detail in the next part. So you have seen this motion कि तुम्हारे पास कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब देखो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के विद रिस्पेक्ट में कैसे फ्लो करता है, see this, okay, try to understand this part, okay, क्योंकि most of the people they consider that okay ये हो गया तो बस इलेक्ट्रॉन इससे ही कंट्रीब्यूट हो गया, ओके, नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का मोशन होता है, एक तो होता है तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दूसरे होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर जनरली बाउंडेड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई, ओके, बाउंडेड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई। इसके अलावा और भी फिनोमिनन्स होते हैं, डिफेक्ट हो गए सेमीकंडक्टर्स में, ओके, सम ऑफ द साइड्स आर एम्प्टी, साइड्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया उनका, ठीक है, ओके, तो मेनली क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन और द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और तुम लोगों को पता होगा कि ये भी यू विल स्टडी दिस इन डिटेल दैट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ द होल, ओके, दे आर नॉट, we do not call them with a particular value, okay, so we call them effective mass or the effective hole because they are generally governed by the forces within the solids, okay, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल, उनका तो कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने मास ऑफ होल ऐसे डिनोट कर लिया, ओके, इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है 9.27, मास ऑफ होल जैसे प्रोटॉन का जितना मास है वो डिनोट कर लिया। लेकिन जब तुम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स देखोगे विद इन द सॉलिड्स, so this is generally denoted by the effective mass of electron, effective mass of holes, okay, तो इसका भी तुम लोगों को फार्मूला बता दूंगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि आईआईटी जैम में और जेस्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इफ यू आर गिविंग द नेट फॉर द इलेक्ट्रिकल साइंसेस, ओके, अगर तुम लोग नेट इलेक्ट्रिकल साइंसेस ब्रांच से दे रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी दिस नाउ। सो अब इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड में
वैलेंस बैंड में ऑलवेज कंसीडर दिस इज योर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास क्या होंगे, हर एक, जैसे तुम्हारे पास these are your electrons are here, okay, and these electrons that I am denoting in the valence band, they are bounded to their parent nuclei, okay, जैसे तुम यहाँ पे बाउंडेड थे। अब इसमें कंडक्शन कैसे होता है, जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम लोग, ओके, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, okay, it will gain some energy. Let us consider that the temperature that you are increasing, or it is greater than this energy gap, so it will break its side, okay, ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे जंप करके इट विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड, ओके, इट विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड। तो विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी बैंड ऐसे इसका कंडक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट बाउंडेड बट दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बाउंडेड, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही तुम्हारा क्या हुआ, ब्रेक किया कोवेलेंट बॉन्ड को, इट जंप टू द कंडक्शन बैंड, ओके। अब यहाँ पे कैसे कंडक्शन होता है, जैसे ही ये होल क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, अब एडजेसेंट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर यहाँ पे एक होल क्रिएटेड होगा, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इस कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आएंगे, राइट, ओके, तो उनको मैं डिनोट कर रहा हूं, द करंट इज इक्वल टू आई ऑफ एन, okay, so this is called the band to band jumping, okay, this is called the band to band jumping। और जो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कैसे कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इनसाइड दिस साइड, ओके, और होल की क्या डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूवमेंट, ओके। सो टोटल जो करंट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, आई एन, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्लस जो यहाँ पे होल हो रहा है, आई पी, ओके। ऑलवेज कंसिडर दैट कि तुमने जब भी तुम लोग इक्वेशन देखोगे, यू विल सी दिस इक्वेशन आई एन प्लस आई पी, ओके। तुम लोग सोचते हो कि सर अब इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं, होल्स भी इक्वली नंबर जनरेट हुए हैं, तो ये करंट क्या सेम हो गया क्या नहीं होगा, या इट शुड बी ए सिंगल इक्वेशन, नहीं, दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन। ये इसमें क्या होता है, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, दिस इज फॉर द होल्स, ओके। और कोई बता सकता है कि मेरे को होल का करंट ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन्स का करंट ज्यादा होगा, तो सोच सकते हो तुम लोग। यस, एनीवन, कैन एनीवन थिंक अबाउट इट, कि द करंट by the holes would be greater than the current by the electrons, okay। तो होल और इलेक्ट्रॉन्स का करंट किसका ज्यादा होगा, anyone can you guess, okay, so for the time being I will tell you that the electrode current is more because the mobility of the electrons is more, okay। तो अब इसमें ये क्या होता है, इंट्रिंसिक का हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है वैलेंस बैंड में जैसे ही तुम्हारा होल जनरेट होगा, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So the extrinsic semiconductors are of two type, N type and the P type। अब क्यों यूज करने की जरूरत पड़ गई हमको, बिकॉज दैट द EHP generation it's very less, okay, in case of the intrinsic semiconductor, okay, तो बहुत कम होता है तुम्हारे पास। तो तुम लोग क्या करते हो, अगर अमाउंट बढ़ाना है इसका, या तो तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते रहो, बट इट इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन, ओके, टू इंक्रीज द टेम्परेचर मच। तो तुम लोग क्योंकि रूम टेम्परेचर में मैक्सिमम सेमीकंडक्टर्स को डील करते हो, राइट, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री केल्विन पे, तुम लोग क्या करोगे, you need to do something, so you do what, you add some impurities to that intrinsic which is pure। अब उसमें क्या होता है, there are two type of extrinsic semiconductors, N type and the P type, okay, N type and the P type। तो N types में क्या होंगे, the electrons will be more than holes, और P type में क्या होंगे, the holes would be more than electrons, ओके, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा। अब इसमें होता क्या है, जस्ट सी दिस,
सो एन टाइप। ओके, अब देखो तुम्हारे पास सिलिकॉन में क्या है, 4 एटम्स हैं आउटर वैलेंस शेल में, राइट, these are the 4 atoms। अब तुमने इफ यू हैव सीन दैट लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को टेबल बताया था उसका ग्रुप 3 और 3b, ओके, बिकॉज दैट जनरली प्लेज ए रोल इन द सेमीकंडक्टर्स। उसमें क्या क्या थे, बोरोन, कार्बन, राइट, ओके, नेक्स्ट था तुम्हारे पास नाइट्रोजन, और इसके नीचे क्या था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एंड दिस वाज योर phosphorus, then gallium, okay, after that germanium, and this was equal to arsenic। It's up to you that how you would remember it, because तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इनको गैलियम को मिक्स करें हम लोग सिलिकॉन में, कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। then there is tin, okay, then there is tellurium, yeah, this is okay, so this is your 14, this is 13, this is I think 15, okay, and this will be your 6, 5, okay, these are the atomic numbers of individual elements, okay, so this is around what, 31, 32 and 33, apart from this indium is around 49, okay, 49, 15, the 51, so these are the atomic number of this elements, okay। तो अब देखो तुम लोग ये जो लाइन देख रहे हो, इसमें जो आउटर वैलेंस शेल में होंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इफ यू आर लुकिंग एट दिस ग्रुप, और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और इसके में क्या होंगे, देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, राइट, ओके, तुम लोग इजीली कर सकते हो इसको, राइट। फास्फोरस को क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट, तो ये 3s और 3p में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5, ओके। तो अब देखो कि मुझे चाहिए एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, मतलब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, और ये मिडिल जो पोर्शन है, ओके, दिस वन, इसमें या तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ इम्प्योरिटीज, या ये ऐड कर सकता हूँ, इनको बोलते हैं लोग इम्प्योरिटी, ओके, इंट्रिंसिक को बोलते हैं प्योर। तो अब मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो मैं ये वाले लाइन ऐड करूं, ग्रुप this one group I should add, let us take this is group 3, this is group 2 and this is group 1, okay। तो मुझे बताओ आप लोग कि ग्रुप 2 में मैं ग्रुप 3 ऐड करूं या ग्रुप 1 ऐड करूं, if I need more electrons, yes, anyone, sir, group 3, because, and this is called the tetravalent, okay, and this is called the trivalent। So what we try to do is that we try to add the pentavalent impurities, okay, we try to add the pentavalent impurities in this, okay। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 है, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मान लो कि इफ आई ऐड द सिलिकॉन, सॉरी फास्फोरस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 है, okay, so now you understand that 1 2 3, okay, and 4, right, 1 2 3 and 4, so the fifth is, अब ये तो कोवलेंट बॉन्ड में बन गया, फिफ्थ क्या है, this is loosely bounded, okay, very loosely bounded than this covalent bond, so this is available here now, okay। अब उनका तो कोवलेंट बॉन्ड पूरा हो गया था, अब ये क्या बचा इसके पास, एक्स्ट्रा बच गया, राइट, इट गोट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। अब तुम लोग सोचो कि ये तो एक ही एटम मैंने ऐड किया है, राइट, इफ आई एम एडिंग एटम अमाउंट इज 10 raised to the power 22, so we'll be getting what, 10 raised to the power 22 electrons, okay, so how many the electrons will be getting for each atom if it is contributing only 1 electrons, so 10 raised to the power 22 atoms would contribute 10 raised to the power 22
electrons, that you understand. Okay, so whenever you are adding the pentavalent impurity to the tetravalent substance, so you are getting a extra electron. Okay, an extra electron. अब एनर्जी बैंड में क्या होता है देखो. ओके, अब इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना, क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे जो करंट होता है, ओके, इसमें होता क्या, क्योंकि बिकॉज this extra electron that you got, okay, from the impurity, so it will be having its own energy level, okay, own energy level, right? So if I am talking about a large number of electrons, so they will all be having their own energy levels. Okay, तो अब क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर इंट्रिंसिक में ये बैंड था, you will see that in the extrinsic n-type semiconductor you will be getting this energy level. और ये क्या है, these electrons are your extra electrons. Okay, these electrons are your extra electron. अब तुम लोगों को पता है कि हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ पे होगा, कंडक्शन बैंड में. जब तक कि वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं मूव करता है तो तुम्हारा करंट नहीं फ्लो करेगा. अब जो ये ऊपर जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने, ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डोनर. Why? Because it is giving the one extra electrons to the silicon. Okay, तो ये जो लेवल, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यहाँ पे पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था. अब तुम्हारा एनर्जी लेवल कहाँ पर बढ़ गया है, यू गोट दिस ED. अब देखो, पहले मान लो कि यू नीड टू जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर, यू रिक्वायर E1 एनर्जी. ओके, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको कंडक्शन बैंड में जंप करना है, इट रिक्वायर वेरी मच एनर्जी हेयर. ओके, दिस इज, let us consider this is E2, which is equal to EC minus E of D. Okay, तो जनरली क्या होता है कि ये this is 0.01 electron for the germanium, okay, and 0.05 for the electron volt for the silicon. तो इसको याद करने का तरीका यही है कि तुम्हारा अगर जर्मेनियम, जो कि तुम्हारा बड़ा एटम है और जिसका साइज बड़ा होता है, उसकी जो शेल होती है वो उतनी ही दूर होती है ना, उसको उतनी ही कम एनर्जी चाहिए, है ना. सिलिकॉन जैसे आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो उसकी यहां तक होगी, राइट, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल. जर्मेनियम की क्या होगी, क्योंकि जर्मेनियम इट्स बिगर एटम, तो इसको लेस एनर्जी चाहिए होती है जर्मेनियम को. सो दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन आर डिफरेंट. तो यहाँ पे ये क्या होता है, दिस E2 इट इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो कि पहले तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, नाउ यू रिक्वायर ओनली 0.01 फॉर जर्मेनियम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन टू जंप फ्रॉम this donor level to the conduction. ठीक है, donor level to the conduction. अब now you got another phenomenon. Okay, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो कैसे मार्क करते हैं हम लोग, जस्ट सी दिस. देखो, this is वैलेंस बैंड and this is the donor level. Okay, जो कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया तुम्हारे पास. ओके, n नंबर इलेक्ट्रॉन से तो गोट दिस. अब दिस इज कंडक्शन बैंड. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ये साइड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को मिला है, ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी मिला है, दे विल फ्रीली मूव थ्रू द स्पेस. ओके, तो ये क्या करेगा, जैसे तुम लोगों को फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन मिला है, ओके, सो इट इज वेरी लूजली बाउंडेड, इट विल मूव अराउंड फ्रीली इन दिस सॉलिड. ओके, तो ये क्या करेगा, अगर थोड़ा सा भी, अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तुम लोग, तो तुम्हारे पास क्या होगे, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेंगे, इस डोनर लेवल से इस तरह. और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, ओके, ये एक्स्ट्रा वाले होंगे. तो इनकी वजह से ये क्या हो गया, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी आयनाइजेशन करंट. ओके, वी कॉल दिस एज इम्प्योरिटी आयनाइजेशन करंट. तो एक तो ये करंट हो गया इसकी वजह से, जो कि ये इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड हैं, दे रिक्वायर ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, एंड दे विल बी जंपिंग इन द कंडक्शन बैंड, एंड दे विल बी फ्रीली मूविंग. ओके, दे विल बी फ्रीली मूविंग. दूसरा क्या हो सकता है,
कि तुम्हारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि ये बाउंडेड है यहाँ पे, राइट, ओके, जो कि ये बाउंडेड है, ये भी तो ब्रेक हो सकते हैं, दिस विल ब्रेक। इसके बाद ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक स्पेस जैसे ये जंप हुआ, इसका क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएटेड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे जंप हुआ, एक वैकेंसी फिर यहाँ पे क्रिएट हुई, ओके, जो कि तुम लोग इंट्रिंसिक में देख रहे थे वैसा फिनोमेना हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करे कंडक्शन बैंड में, ओके, वो जंप करे, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंड टू बैंड करंट, ओके, बैंड टू बैंड करंट। सो टोटल जो करंट इसमें होता है उसमें क्या था, आई एन प्लस आई पी, इसमें क्या होता है, आई एन वन प्लस आई एन टू प्लस, ओके, आई पी। तो let us consider this was your, this is for the band to band, okay, band to band currents that you are getting। और जो ये एक्स्ट्रा जो ये करंट आया है ये कहां से आया है, यहां से, ओके, कहां से, ये डोनर लेवल में जो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन करंट है, ओके, सो यू गोट दिस एक्स्ट्रा करंट। तो अब क्या हो गया, तुम्हारा करंट जो पिछले केस में आई एन प्लस आई पी था ओनली, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड, ओके, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड। तो अब वही जो फिनोमेना मैंने बताया था, अगर तुम लोग 0 डिग्री केल्विन से अगर यहाँ पे 300 डिग्री केल्विन पे लोगे तो इसमें करंट होगा तुम्हारे पास 10 मिली एम्पियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर था उसमें क्या था, जब तुम लोग 300 से लेके 400 जा रहे थे तो तुम लोगों को मिल रहा था 10 मिली एम्पियर, ओके, 10 मिली एम्पियर करंट। तो बस तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिल गया, करंट मिल गया एक्स्ट्रा, ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल, ओके। अब ये तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन बताया, अब तुम लोग कंसीडर कर सकते हो कि कितनी इंप्योरिटी तुम लोगों को ऐड करनी है, ओके, सो दैट इंप्योरिटी इज डिनोटेड बाय द एन ऑफ डी, ओके। अच्छा, तो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, whenever we are adding the impurity, is the solid that extrinsic would remain neutral और इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, यस जो नहीं। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि देखो तुमने डोनर ऐड किया है, ठीक है, तो क्या उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा क्या जो सॉलिड है अभी, या इट विल रिमेन न्यूट्रल, यस, सर न्यूट्रल। क्वेश्चन समझ, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा हमने एटम को ऐड किया है ना, एक फोस्फोरस एटम को ऐड किया है, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि फोस्फोरस एटम में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओके, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, और ये जब इक्वल होते हैं तो क्या रहता है, न्यूट्रल। तो हम पूरा का पूरा एटम ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो ये भी एक नंबर क्वेश्चन है कि ऑल दिस एटम्स व्हेन वी आर पुटिंग द इम्प्योरिटी इन इट, ओके। अब ये तो हो गया एन टाइप। अब पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग, ओके, इसके बाद पी टाइप में विल बी एडिंग व्हाट, विल बी एडिंग टेट्रावैलेंट में, जो कि तुम्हारे पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ओके, इसमें हम लोग ऐड करेंगे तुम्हारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ओके, ट्राइवेलेंट। तो पी टाइप क्या रेफर करते हैं, होल्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो होल्स आर योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर योर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। तो मैक्सिमम जो करंट है दैट इज कैरिड बाय द होल्स ओनली। सो अब इसमें क्या होगा, आई विल मेकिंग ए एनर्जी बैंड डायग्राम एज वेल एज, ओके। तो इसमें जैसे तुम्हारा सिलिकॉन एटम है, ठीक है, so this is your silicon atom, so consider that these are your electrons, okay, outermost shell में, ठीक है। अब तुमने ऐड क्या किया इसमें, बोरोन, राइट, फॉस्फोरस की जगह किया तुमने बोरोन, और बोरोन के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखो, ओके, so what would happen, this is electron, this electron and this electron, and this will be your empty side, okay, this will be empty side. You can say this is your hole, okay, so empty site in the covalent bond, this is
द होल. ओके. ऑल्सो एक पॉइंट और बताना है मैंने तुम लोगों को कि देखो यहाँ पे जैसे ये लूजली बाउंड एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन हुआ था, इसका जब मूवमेंट होता है, इसके जो स्पेस होता है उसको हम कभी भी होल नहीं कंसीडर करते हैं. होल हमेशा कंसीडर होता है जहां पे कोवलेंट बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होता है. ओके. तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे, ये तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स था, तो जब इसको एनर्जी मिली तो ये it will run. Okay. But the space created by it is not considered the whole. The holes are always considered inside the covalent bond. Okay. Holes are always considered inside the covalent bond. जो वो वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला, उसको लोग क्या कहते हैं, फ्री मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है. तो what would happen here? You got the extra holes. Okay. So क्या होगा तुम्हारे पास, जैसे ही तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, this is possibility that this electron will gain some energy. Okay. This electron will gain some energy and it will occupy this side. Okay. अब तुम्हारे पास there are many holes are there. Okay. So many holes are there means that the movement of the electrons, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, you got this. Okay. So you got some kind of phenomenon that is moving. Okay. तो वहां पे क्या थे, तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, इसमें क्या है, तुम्हारे पास होल्स ज्यादा. ओके. got the number of holes are there. So अब इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, क्योंकि ये बोरोन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ओके. फ्रॉम द एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन, जहां से भी आएगा तुम्हारे सॉलिड्स में, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, इस लेवल को एक्सेप्टर लेवल. ओके. सेम होगा ये एक्सेप्टर लेवल. दिस इज ईवी एंड दिस इज द ईसी. ओके. तो ये जितना ये डिफरेंस है वही होगा. 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम and 0.05 for the silicon. Okay. So this in the acceptor, what you got? You got the extra holes. अब देखो. Okay. So अब क्या है, यहाँ पे वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड में जो ये बाउंडेड है. ओके. These are your bounded electrons are. Okay. So it is what they are going to do? They are going to move here. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, ओके, एक वैलेंस, एक होल क्रिएट होगा, फिर क्या करेगा, जो एडजेसेंट है दैट विल ऑक्यूपाई, तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होती रहेगी. okay? और यहाँ पे क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन है आया यहाँ पे, ठीक है. ओके. जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक हमेशा याद रखना तुम्हारा करंट नहीं फ्लो करेगा. ठीक है. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना, अब इलेक्ट्रॉन या तो यहां से लेके यहाँ पे जंप करे. ठीक है. ओके. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करे, फिर यहां से यहाँ जंप करे. राइट. ओके. तो तुम्हारे लिए क्या बन गया, यू गॉट दिस वैकेंसीज हियर नाउ. ओके. तो अगेन देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से यहाँ जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, ओके, फिर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आया, या यही इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया. ओके. तो ये क्या हुआ, तुम्हारा होल्स की मूवमेंट होगी यहाँ पे. ठीक है. अप टू दिस एक्सेप्टर लेवल, होल कभी भी दे डू नॉट मूव इन द कंडक्शन बैंड. ओके. सो व्हाट यू गॉट इज दैट यू गॉट द मोर होल करंट नाउ. H1 प्लस IH प्लस IP. ओके. IH प्लस IP या IN प्लस, इसको ये तुम लोग क्या कह सकते हो IN प्लस IH में कह रहा हूँ इसको. ठीक है. होल और इलेक्ट्रॉन्स. तो तुम्हारे पास क्या हो गया, टोटल जो करंट आया, दैट इज दिस इज योर ड्यू टू द एक्स्ट्रा होल्स दैट यू गेन इन द एक्सेप्टर लेवल. ओके. तो एक्सक्यूज मी ये सर. तुम्हारा, हाँ बोलो. यस. सर सर, ये जो एक्सेप्टर लेवल है वहां पर बोरॉन का होल होगा ना? हाँ, बोरोन का होल होगा, क्योंकि बोरॉन हाँ का जो होल. हाँ yes, this acceptor level is having what, it is having the hollow boron. Okay. So let me write this. Just a minute. Okay.
तो मैंने इसको लिख देता हूँ क्योंकि ओके क्योंकि सिलिकॉन को क्या चाहिए ना, तो जर्मेनियम को एट 15 डिग्री केल्विन लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए जर्मेनियम को, ठीक है। एंड 100 डिग्री और 0 डिग्री केल्विन पे सभी के सभी क्या है, बाउंडेड है, हमेशा याद रखना, चाहे एक्सटेंसिव हो चाहे इंट्रिंसिक हो, दैट वुड बी योर insulator, okay, so they cannot freely move. So at 50 degree Kelvin for germanium and the 100 degree Kelvin for the silicon, okay, electrons gain energy and move to hole at, okay, electrons, okay, लिख सकते हो, मैं notes भी दे दूंगा तुम लोगों को, electrons. Mukesh sir, can I continue for the 10 minutes more? Okay, so I'll wrap up this topic. Yeah, you can go. I mean, there is no problem. I mean, so far, I mean, we have time, so you can. हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, so at the 15 so electrons, okay, by gaining some energy, by gaining some energy, so they are moving from what to valence band to, okay, valence band से लेके acceptor level पे वे हो जाते, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब देखो तुम लोग, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वहां पे मूव होंगे, ओके, जैसे इस वैलेंस बैंड से जो इस एक्सेप्टर लेवल में जो जो होल्स हैं, ओके, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे मान लो कि मूव हो रहे हैं, ठीक है, ओके, मूव हो रहे हैं, अगर मान लो ये सारे के सारे कंबाइन करके, तो देख ऑल होल्स विल डिसअपीयर, राइट, जैसे ही ऑक्यूपाई कर लेता है कोई भी इलेक्ट्रॉन होल, ओके, सो दे विल डिसअपीयर। ओके, ऑल होल्स विल डिसअपीयर। और उसके बाद क्या हो जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड कहां होता है, जो ये बाउंडेड है साइड पे, ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल्स आर, उतना ही नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड, होल्स आर क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, ओके। अब जैसे ही होल्स आर क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, ओके, सो व्हाट वुड हैपन, हेंस जो n है तुम्हारे पास वो कितने हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, और p क्या है तुम्हारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे, कि देखो जैसे ही तुम्हारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचे कि इन होल्स में कंबाइन कर दे, ठीक है, ओके, बस हमें क्या देखना है कि एक्सट्रिंसिक जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें क्या होता है, Sorry, I holes are can't more. see your screen, Praveen. Okay, okay, okay. Yeah. Let me share that screen. Is it visible now? Yes, it's Narayan. Yeah. Okay, okay. You see, देखो क्या हुआ तुम्हारे पास, जैसे ही वैलेंस बैंड में जो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दे गोन टू दिस लेवल, ओके, इस लेवल पे क्या क्या तुम्हारे पास होल है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि कंबाइन कर दे, जो भी एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कैसे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, सो व्हाट वुड हैपन, दिस n इक्वल टू 0, n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे पास होल्स आ गए एक्स्ट्रा वैलेंस बैंड में बहुत सारे, ओके, so this is, it is greater than 0, it is greater than 0। तो अब इसमें जो p टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, the number of holes they are more than the number of the electrons, ओके, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसका
holes are created inside the valence band. Okay, holes are created inside the valence band. अब उसके बाद अगर तुम लोग क्या करोगे, अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो एक्सेप्टर लेवल से वो क्या करेंगे, दे विल जंप टुवर्ड्स the conduction band. Okay, they will jump towards the conduction band and the n will increase and the p will increase. Okay, अब जैसे जैसे तुम लोग क्या करोगे, जैसे जैसे अगर तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे, if you increasing the temperature more, so what would happen is that और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर होंगे, जैसे ये ब्रेकअप हो जाएंगे. ओके, तो दे विल मूव टुवर्ड्स एट दिस कंडक्शन बैंड. ऐसे इसमें कंडक्शन होता है, देन दिस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव. ओके, फ्री टू मूव. So that is how the current takes place in the extrinsic semiconductors. Okay, और I think this extrinsic अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, okay, तो you can ask. Okay, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? Okay, always remember this. Extrinsic. Intrinsic. In the extrinsic. Okay, so we are winding this topic down. Okay, इसके अलावा हमारे इसमें टॉपिक में रहेगा मास एक्शन लॉ. Okay, so in the intrinsic semiconductors, they are called the pure. Okay, so these are the impure semiconductors. So okay, at 0 degree Kelvin, this is your insulator. Okay, again the extrinsic is also insulator. So the theoretical question आए तो you can do that. Insulator. Okay, so in this the density of the n and p. Okay, तो मैं n और p को कैसे नोट कर रहा हूँ, these are the number of the electrons generated. Okay, similarly p denotes the number of holes generated. In the intrinsic semiconductors, this n is almost equal to the p. Okay, तो जितने भी तुम्हारे जैसे टेम्परेचर से जनरेट हुए तो वो क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पे जो जनरेशन हुआ था वो ऑलमोस्ट दे विल बी इक्वल. ओके, बट इन दिस n will be greater than p for n type semiconductors, n type extrinsic semiconductors. P will be greater than for p type semiconductors. Okay, and particularly p we are adding what, silicon अगर तुम्हारा ये है, इसमें तुम लोग मानो कि this is boron, this will be your phosphorus. Okay, this will be your phosphorus. That is how we are doing it. Okay, so इसके अलावा क्या है, जैसे टेम्परेचर है. ओके, एनर्जी गैप इज ऑलवेज. ओके, सो ये भी मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को, लेकिन एनर्जी गैप का क्या फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, दिस विल डिक्रीज. की एनर्जी जितनी अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो ये एनर्जी गैप होता है, ओके, क्योंकि दिस विल रिड्यूस. इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए, तो तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ पहुंचता जाएगा एनर्जी में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और देन इट विल जंप. ओके, सो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इसका एक न्यूमेरिकल तुम्हारे IIT जैम में आया है, एनर्जी गैप इज कितने से पावर से प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो दिस इज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, this n is equal to p, so they follow the mass action law. What is the mass action law? Both of them follow the mass action law. In this, ni square is equal to always equal to n into p. Okay, so this ni is, we call this as a intrinsic, we call this as a intrinsic electron density या free charge density. ओके, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज डेंसिटी. मतलब कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जनरली डेंसिटी इज नोटेड बाय दिस. सेकंड इज यू आर इन दिस, वी डिस्कस अबाउट दिस nd प्लस p इज इक्वल टू na. ओके, प्लस n. इसको कहते हैं हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन.
ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इन दोनों फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे. Ni square is equal to Np, and this Nd is nothing but the donor atom concentration. ओके, तो जब भी मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स पर क्यूबिक एरिया. ओके, पर क्यूबिक मीटर हो, पर सेंटीमीटर हो. सो ओके, और Na क्या है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर. ओके, कितने बोरॉन तुम लोग ऐड कर रहे हो उसमें, एक्सेप्टर. ठीक है, एंड दिस P एंड N आर योर इलेक्ट्रॉन एंड द होल डेंसिटी. ओके, तो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे जब इसको स्पष्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं. तो मेनली इन दो फार्मूले पे ही आएंगे तुम्हारे. either Ni is equal to, okay, so this equation we call this as a mass action law, that the square of the intrinsic charge density concentration is always equal to the number of the electrons multiplied by the number of holes. Okay, तो और सेकेंड इक्वेशन चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन की, अगर तुम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा एटम ऐड कर रहे हो, राइट, यू आर एडिंग द प्योर होल एटम, तो तुम्हारा चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज रहता है. ओके, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. ओके, ये दोनों क्या रहते हैं, तुम्हारे इक्वल रहते हैं. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन. So I think I will wind up the session now. Okay, so if you are having any doubt from this class, okay, बस हमने सिंपल ही किया है, बस just try to understand where we need to means concentrate. कौन सा पॉइंट पे मेरे को कंसंट्रेट करना है, कौन सा पॉइंट. ओके, एक्सेप्टर जैसे हुआ, डोनर लेवल हो गया, या तुम्हारे पास एनर्जी गैप हो गया, या मास एक्शन लो हो गया, कैसे इसमें कंडक्शन होता है. दिस इज वेरी बेसिक्स of electrons. Okay, इसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन डिस्कस. सो मुकेश सर, Excuse me, sir. हाँ जो बोलो. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, I have a question. हाँ बोलो. Sir, in semiconductors, covalent bonds create a net-like structure. So, हाँ, what will happen to the terminal atoms? How these covalent those terminal atoms will fulfill their octet or share their electrons? okay, share the how the covalent bonds are formed, you are asking that point. Yes, sir. What will happen to the terminal atoms? I mean, how will they share electrons? How they share electrons. Okay, so you see, I already told you about this, that this sharing is generally okay. So क्योंकि देखो, नेक्स्ट एटम क्या है तुम्हारे पास, अब ये एक और तुम्हारे पास एक सिलिकॉन है मान लो. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में गिव एंड टेक नहीं है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये कोई गिव एंड टेक नहीं कर रहा है कि चार्ज लेके Na प्लस या Cl नेगेटिव. ओके, दैट इज द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. बट इन द कोवेलेंट बॉन्ड व्हाट रियली हैपेंस इज दैट this electron will be shared by this one. Okay, तो इसके जो outer most shell होंगे, they will be combined in such a way that this electron will be shared by the adjacent atom. Okay, ऐसे ही तुम्हारा क्या होगा कि जो दूसरा सिलिकॉन एटम है, ओके, जहां तक मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, इसके अलावा तुमने क्या पूछा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा है, कैन यू राइट द या एनीवन, मुकेश एंड रोहित सर, डिड यू अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन. देखो, इफ यू आर डूइंग दिस, ओके, तो अब ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग है. ओके, व्हेनेवर देयर इज शेयरिंग ऑफ दिस एटम्स, ओके, क्लोज टू ईच अदर, ओके, दे आर लाइक, जैसे मैंने तुम्हारे पहले ही पेज पे बताया था तुम लोगों को, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस वन. ओके, दिस वन, you can see this, they are sharing the electrons. Okay, that is how the covalent bond is formed. This covalent bond is formed. Yeah, Jumi, can you write your question in the chat box? You have, the question is how the covalent bonds are formed. What is the second question that you asked? How? Jumi.
Yeah, so she wrote the question Sir, in the I chat have that So what what will happen to the terminal atoms? atoms? Okay, how will they fill their octet? Okay. So you are saying that the boundary condition. Okay, so you are saying that this is your solid, right? Okay, तो देखो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, देखो ये जैसे तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है, these are your terminal atoms, right? Okay, तो ये एक्सटर्नल हो गए जहाँ पे बाउंड्री एंड हो जाती है. This structure sir. that we are showing you, it's generally it's a planar structure, 1D structure we call this. Okay, जैसे 2D structure है ये, ठीक है. लेकिन solids में क्या होता है, this is not a 2D, it's a 3D structure. Okay, तो वहां पे क्या होता है solids में कि तुम्हारे जो मैक्सिमम होंगे, जो शेयरिंग होता है, वो क्या होगा, they will not end here, there will be some atoms above it and below it. समझ रहे हो तुम? ठीक है. अगर तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर तुम लोग कट करते हो किसी चीज को, यहां से कट करते हो, क्या वो कट होगा, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस, देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस आल्सो. ओके, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं, एक तो बात ये है कि दिस इज योर 2D स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज कॉल्ड द प्लेनर representation of the atoms like this. Okay, but in the actual life this is not planar. Okay, just for the representation there is some atom below it also, above it also, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी atoms होंगे. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे. ठीक है, ओके, शेयर करेंगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, और ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ ए फोर्स, इट्स काइंड ऑफ ए फोर्स, दे आर बाउंडेड टुगेदर. ओके, तो इफ यू आर कटिंग दिस पोर्शन, अगर तुम लोग कट करते हो, मान लो कि सेमीकंडक्टर को ऐसे कट कर दिया तुमने, या मेटल को कट कर दिया, ऑफ कोर्स देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस. होंगे, राइट? ओके, बट those electrons do not take part in the conduction until some external force is applied ना. ओके, तो वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स में they will move. Okay, if you are applying some battery to it. लेकिन देखो अब जनरली होता क्या है, वी रिक्वायर व्हाट ऑलवेज रिक्वायर द न्यूट्रलिटी एवरीवेयर. ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक बैटरी रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन, जब जाके ऐसे सर्किट तुम्हारा पूरा होता है, राइट? ओके, so until unless they are contributing to the neutrality they will be counted, otherwise they will not. Okay, so pehla point I am hoping that first point is that these are not terminal atoms, we call them as the they are 3D arranged atoms are there. Okay, and yes, Okay, sir. Now I Yeah. understand. yes, okay, of course there will be some terminals जो saying that क्या होता है उनका, लेकिन क्या होता है ना, 3D अरेंजमेंट है वो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारी बाउंड्री कंडीशन ओवर हो गई है. ओके, और बाउंड्री कंडीशन जब ओवर हो जाती है सॉलिड्स की, उसके लिए भी अदर कुछ हम लोग पुट करते हैं कि कैसे वेव फंक्शंस ओवरलैप करेंगे. ओके, देयर इज अनदर स्टैटिस्टिक्स और दैट. ओके, so Mukesh sir, I think I will stop here. Good. So are there Yeah. any other question from other participants? If not, then let me stop the recording. Yes.